तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC बेंगलोर में एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड बहुत सारे वो डाउट्स जो आप मुझे रेगुलरली पूछते रहते हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपके ESIC बेंगलोर के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला है एकेडमिक्स, दूसरा हॉस्टल एंड तीसरा हॉस्पिटल। तो let's start the video. So first chapter is academics. In this first point is location. It is located in Rajajinagar, Bangalore. Second point, how to reach. You can reach here both by airway and railway. Airport is 36 km away and railway station is 4 km away from the college, and from both of these locations you can get direct bus to college. Third point, number of seats, which is 125. Seat distribution, 15% all India quota seats, 35% IP quota seats and 50% state quota seats. एक बात नोट करने की यहाँ ये है कि मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ सीट 125 बताई है, पर आपको YouTube पे कोई एक और वीडियो मिल जाएगी जिसने टोटल नंबर ऑफ सीट 135 बताई है, जो किसी बाहर के बंदे ने बनाई है। बट एज मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एकदम सही दूंगा। तो प्लीज़ जो गलत इन्फॉर्मेशन से मिसगाइड ना हो, और उस वीडियो में कट ऑफ भी गलत बताई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गलत इन्फॉर्मेशन सुन के बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। So fifth point, fee structure. For all India quota and state quota seats, tuition fee is 1 lakh per year, and after including refundable fees and university fees, total amount is 1,14,350. For ESIC quota students, tuition fee is 124,000 per year, and after including refundable fee and university fee, total amount you have to pay is 38,350. Hostel fee, which is same for all the students, is 1,800 per year, means 150 per month, which is very less. After including refundable security deposit, total amount you have to pay for hostel is 11,800. Sixth point, document required. Need admit card, need score card, tuition fee or demand draft, allotment letter, 6 passport size photo, but make sure that these photos are same as you apply for the NEET. 10th mark sheet, 12th mark sheet, TC, migration certificate, character certificate, caste cum income certificate. After that, eligibility certificate, board of IP certificate for ESIC management students only, Aadhaar card of student and both of the parents, online anti-ragging registration form, anti-ragging affidavit, bond papers, and soft copy of all these documents in CD drive or pen drive in both JPG and for PDF format. And make sure that you also carry 4 sets of Xerox along with all these original documents which require in admission process. And you can also take a screenshot of all this for your future reference. एक बात गौर करने की यहाँ ये है कि जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट एंड बॉन्ड पेपर जो बताए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ आने के बाद ही बनवाएं, क्योंकि इन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो सिर्फ कर्नाटका की एक्सेप्टेबल होगी, कोई अदर स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बात रही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज वाले यहाँ आने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें लिखवाना क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ आने के बाद ही बनवाएं। अब बात रही कि आप परेशान होंगी सर हम वहाँ नोटरी कहाँ ढूंढेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नोटरी कॉलेज के जस्ट पास है, तो उसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। Let's move on 7th point, that is cutoff. First talk about the all India cutoff. Here we talk about only first round and second round cutoff, not about the mop-up round, stray vacancy round or special stray vacancy round. And this cutoff is based on last year result, means 2022. So for general category, last rank of admission is 13,000. For OBC category, last rank of admission is 16,500. For SC category, 56,000. And for ST category, 63,000 is the last rank of admission. And these ranks are not exact, these are approx, means not at 13,121. I take it 13,000. Talk about the cutoff of IP quota. So here also we take only first round and second round cutoff and note of stray vacancy and
specialist vacancy round and which based on 2022. For general category, last rank of admission is 35,000, EWS category 46,000, OBC 53,000, SC category last rank of admission is 2.7 lakh and ST category 2.8 lakh. And as previous, these cutoff also approx not exact number. Let's talk about the 8th point, that is admission process. तो जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटे से एंड स्टेट कोटे से इस कॉलेज में आना चाहते हैं उनके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ एज यूजुअल जो अदर कॉलेज की काउंसलिंग करवाएंगे उसी टाइप से इस कॉलेज की काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। बात जो आईपी कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज में उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो जो आईपी कोटे की काउंसलिंग वो सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग से होगी, स्टेट काउंसलिंग से नहीं होगी। तो आपको करना ये है कि जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की साइट पे जाओगे वहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन मिलेगा आईपी कोटे का, तो आप उसे सिलेक्ट करें, फिर आप जो ईएसआईसी जितने भी कॉलेज है उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो और कुछ ज़्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आईपी सेट जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन डाउट विच यू आस्क मी रेगुलरली। तो उसमें पहला आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो भाई मैं आपको तो फर्स्ट ईयर में आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ जो प्रोफेसर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी तब जब आप सेकंड ईयर में पेशेंट के साथ डील करना शुरू करोगे, मतलब जब आप क्लिनिक्स में जाना शुरू करोगे, तो वहाँ उसके लिए आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको यहाँ बाहर मार्केट एंड कॉलेज में कोई लैंग्वेज की इशू नहीं होने वाला, सिर्फ आपको पेशेंट के साथ डील करने के लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट कॉमन डाउट आता है प्रोफेसर्स। तो आप मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर यहाँ प्रोफेसर्स कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूँ प्रोफेसर्स भाई यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स हैं और वो आपको यूजुअली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। एंड ये नहीं कि प्रोफेसर्स ने पढ़ाया और उनका काम खत्म, प्रोफेसर्स बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो एकेडमिक्स की हो चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप उनसे जाके डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको ध्यान से सुनेंगे। फिर देन इन सब के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो कैंपस टूर पे वीडियो है वो भी देखें। तो उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वो जरूर देखें ताकि आपके जो कैंपस से रिलेटेड अदर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। Let's talk about second chapter, that is hostel. So in it first point is room sharing. Here only double sharing and triple sharing rooms are available. No single sharing rooms are available in our hostel. After that second point is washroom facility. So attached washrooms are available which is common in between two rooms. Third point is laundry. Laundry facility is not provided by college. You have to wash your clothes on your own. And I think not a single medical college in India which provides such facility in hostel. So after that, mess. Here both North Indian and South Indian food is provided and mess fees is 3,000 per month, but it may increase with time because as expenses increase, rate may increase. Fifth point, auditorium. Auditorium not present. Sixth point, playground, which is also not present in our college. After that, seventh point, fest. So many fests are celebrated in our college. Fest is Alankriti, which is Ethnic Day, Ganesh Chaturthi, Onam, Advya, RD Cup, a cricket tournament, La Rabona, which is a football tournament, Rana Ranga, annual sports fest. So एंड इन सब के बाद आपको एक डाउट आया होगा कि सर जब यहाँ पे प्लेग्राउंड और ऑडिटोरियम नहीं है तो यहाँ जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और फेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो ESIC की नर्सिंग कॉलेज है उसमें ऑडिटोरियम है, तो हमारे जो फेस्ट है सारे उस ऑडिटोरियम में हो जाते हैं। एंड बात रही स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की, तो उसके लिए कॉलेज वाले हमें बाहर ग्राउंड बुक करवा के देते हैं कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए, तो हमारे जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वो सभी वहाँ होते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड एक कॉमन डाउट आता है कि सर गर्ल्स हॉस्टल का टूर भी करवा दिए, तो मैंने वीडियो बॉयज़ हॉस्टल के टूर पे बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल एग्जैक्टली सेम है। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर जाके देखें ताकि जो आपके हॉस्टल पे अदर डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर थर्ड, दैट इज हॉस्पिटल। सो आवर हॉस्पिटल इज 500 बेडेड हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो इज मोर देन इनफ। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो भाई इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है 25,000 पर मंथ, जो कि जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है उनके कंपैरिजन में बहुत हाई है। एंड एम्स के बाद एक ESIC ही ऐसे कॉलेज आते हैं जो आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी कोई कॉलेज आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करवाता। देन स्टाइपेंड के बाद आता है बॉन्ड।
तो बॉन्ड का सबसे कॉमन डाउट होता है कि सर बॉन्ड होता कितने साल का है, तो बॉन्ड होता है भाई 1 साल का। अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो आपको 5 lakhs की पेनल्टी देनी होगी। एंड फिर बात आती है बॉन्ड हमें कहाँ करना होगा, अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में। तो मैं आपको बता दूँ ESIC के जो हॉस्पिटल्स हैं वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ या सेमी अर्बन एरियाज़ में होते हैं, तो आपको बॉन्ड भी इन्हीं एरियाज़ में करना होगा। एंड बॉन्ड के दौरान सैलरी कितनी है, तो बॉन्ड के दौरान सैलरी वो भी भाई बहुत हाई है, वो है 1 लाख पर मंथ। तो अच्छी खासी सैलरी है और कोई भी कॉलेज आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं देता। एंड देन उसके बाद आता है कि सर हमें बॉन्ड के दौरान जो पोस्टिंग देते हैं अलग अलग एरियाज़ में वो किस पॉइंट पे देते हैं, मतलब किस बेसिस पे देते हैं। तो वो आपको जो इंटर्नशिप में आपका एक जो परफॉर्मेंस पे स्कोर बनाया जाता है उस एंड आपको कुछ चॉइस भी दी जाती है भरने के लिए। तो आप इंटर्नशिप में जो आपका परफॉर्मेंस पे बेस्ड स्कोर है एंड आपकी जो चॉइस भरी है उनके बेसिस पे आपको अलग अलग एरियाज़ में बॉन्ड के लिए पोस्ट किया जाता है। एंड इन सब के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है MBBS के इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।